Welcome to the session, Chapter 11 Human Eye and the Colorful World. In this lesson, we can study about human eye and colorful world. But in 2020 and 21, human eye is deleted, so we can only study about colorful world. Moving ahead. In this lesson, we are studying about the dispersion of light, total internal reflection, and scattering of light. Dispersion of light: when a light passes through a prism, it breaks into its component or spectrum or vigor, color name vigor, is called dispersion of light. The total internal refraction means when light goes one medium to another medium more than its critical angle, then it reflects in the same medium is called total internal reflection. Scattering of light means when the phenomena in which light can scatter, मतलब फैल जाएगी, inner surface is called scattering of light. Let's move ahead. Glass prism. A triangular prism has two triangular base and three rectangular faces. एक फेस ये हो गया रेक्टेंगुलर फेस, एक फेस ये हो गया रेक्टेंगुलर फेस, और एक फेस ये हो गया रेक्टेंगुलर फेस, और टू ट्रायंगुलर बेसिस, ये हो गया एक, और ये पीछे की तरफ होगा एक. एंगल बिटवीन इट्स लेटर्स फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म. जो एंगल होगा प्रिज्म का उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे. मूविंग अहेड. Refraction of light through a glass prism means when a light incident in a glass prism, then it reflected toward the normal. ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई है. आफ्टर डेंसर टू रेयर, देन लाइट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये इमर्जेंट रे कहलाएगी. मीन्स इमर्जेंट रे, the angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation, represented by delta. And angle of incidence, angle between normal and incident ray is called angle of incident. Moving ahead. Dispersion of light by prism. When a light passes through prism, light split into vigor is called dispersion of light. Means when a white light contains 7 colors, means after the passing a prism, its component can reflected, means its component can split हो जाएंगे in the form of vigor, violet, indigo, blue, green, yellow and orange, red. Where red bent maximum, ये समझ लो, ये इंसिडेंट रे है, कितना बैंड हुआ, सबसे कम रेड बैंड हुआ, रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. बिकॉज जो सबसे कम बैंड हो रहा है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. मीन्स वेवलेंथ इज मैक्सिमम इन रेड एंड वेवलेंथ इज मिनिमम लीस्ट इन वायलेट. एंड रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम. मीन्स बैंड्स ऑफ कलर इसका स्पेक्ट्रम. मीन्स बैंड तो यही निकलेगा 7 कलर्स. सो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट इज कॉल्ड विग्यो. मूविंग अहेड. Recombination of a spectrum means the color of a spectrum recombine to give a white light. Means when all color of spectrum are passed through an identical inverted prism placed, known as beam of white light emerges from the second prism. Meaning when a light पास हुई, यहाँ पर हुआ रिफ्रैक्शन, उसके बाद हो गया, यहाँ पे हो रहा है, देखो स्पेक्ट्रम यहाँ पे फॉर्मेट हुआ, विग्योर. आफ्टर द डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिज्म, देन आफ्टर वी एक और प्रिज्म रखा है उल्टा, देन द कलर विग्योर पास थ्रू अ नेक्स्ट वर्टिकल प्रिज्म टू गिव वाइट लाइट. अब वाइट लाइट को देखने के लिए यहाँ पे स्क्रीन हो चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्मेट हो जाएगा. फिर मूविंग अहेड. Formation of rainbow.
Rainbow is a natural spectrum seen in the sky after rain. Means rainbow एक natural spectrum means the color of rainbow is natural, which is made by water droplet of rain. It is formed by the refraction dispersion in total internal reflection and against the refraction of sunlight incidence on the teeny water droplet present in atmosphere that as a small prism. Means when sunlight or white light pass through the water droplet, then it disperses into vigor. After in this position, total internal reflection taken place. Total internal reflection मीन्स क्रिटिकल एंगल से ये ज़्यादा होगा. क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? व्हेन अ लाइट गोज डेंसर टू द रेयरर, ये डेंसर ले लेते हैं, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, अरे यार, ऑन दी सेम प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. Moving ahead. Atmospheric refraction. The refraction of light caused by Earth atmosphere is called atmospheric refraction. We know about the atmosphere of we know about Earth atmosphere. Means atmosphere of Earth have in many places is dense or many places is rarer form, and its atmosphere refraction is continuously changed due to the temperature and natural phenomena. Some of natural phenomena occur due to atmospheric refraction of light. देखते हैं. लाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है. लाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअल आर. एडवांस सनराइज एंड डेली सनसेट. ओके. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. द कंटिन्यूसली चेंजिंग atmospheric refraction of a sunlight of a light from the stars by the different amount from one point to the next. मीन्स ये एटमॉस्फेयर है, समझो. ये कभी डेंसर हो जा रहा है, कभी रेयर हो रहा है. तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस द पोजीशन ऑफ स्टार्स कैन चेंज कंटिन्यूसली. दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. मूविंग अहेड. अगर एग्जाम में आए तो ये फिगर बनाना मत भूलिएगा. ओके. द स्टार सीम हायर देन द एक्चुअल आर. देखते हैं, ये है स्टार और ये इसकी स्ट्रेट, ये ऑब्जर्वर है मान लेते हैं. ये है ऑब्जर्वर. देन इसको यहाँ नहीं दिखेगा, बल्कि इसकी आइज को ड्यू टू रिफ्रैक्शन टूवर्ड द नॉर्मल हो जाता है, तो ये स्टार से यहाँ दिखेगा. इतना पास नहीं दिखेगा, वैसे तो दूर दिखेगा. ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है फिगर बनाते हुए. मूविंग अहेड. Advanced sunrise and delayed sunset. It is also due to atmospheric refraction that we can still see the sun for about 2 minutes even after the sunset below the horizon. Means जब ये देखिए ये सन है होरिजन के नीचे, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर ये बेंड हो रहा है. जब ये बेंड होके हमारी आइज तक जाता है, ये ऑब्जर्वर है, देन हमको ये लगता है कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ये सनराइज हो गया है, बट एक्चुअली में ये होता नहीं. सो वी गेट 2 मिनट एक्स्ट्रा, और शाम को भी 2 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि देन वी हैव 5 मिनट एक्स्ट्रा. मूविंग अहेड. Scattering of light means you throw the light in very random direction. इसका ही दिखा है ना. ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जब वाइट लाइट सन से आती है, देन इट फॉल ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देन
high wavelength of high wavelength of light pass high wavelength of colors pass through them, but मजा आ रहा है but blue color and less wavelength, जो कम वेवलेंथ वाले होते हैं वो इसी में रह जाते हैं। मीन्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे फाइन पार्टिकल होते हैं तो उसी से टकरा के वो क्या कहते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, तो इसलिए स्काई ब्लू दिखता है। क्वेश्चन आ गया वाई द स्काई इज ब्लू, वाई द स्काई इज ब्लू? द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ अ वाइट लाइट बाई एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक बिकॉज द कलर ऑफ स्काई। मतलब वाइट लाइट आती है, जब स्प्लिट होती है तो उसके बाद ब्लू इसलिए हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से वो टकराती हैं, तो जो हाई वेवलेंथ के जो कलर होते हैं वो उससे पास कर जाते हैं, और जबकि जो लो वेवलेंथ के होते हैं वो वहीं पे डिस्पर्स होते हैं। बट आउटर स्पेस में स्काई कलर डार्क होता है, डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ब्लू, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एटमॉस्फियर एंड नॉट चेंज देयर रिएक्टिविटी इंडेक्स। Why the sun appear red at the sunrise and sunset? The sun and the surrounding sky appear red at sunrise and at the sunset because it blah blah, थोड़ा इसको रेड इसलिए दिखता है, रेड इसलिए दिखता है, ये समझो ये समझो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ से इसे इतनी डिस्टेंस कवर करने में और यहाँ से इतने डिस्टेंस मीन्स सन ट्रेवल लोवेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इन आफ्टरनून, बट इन सनसेट एंड सनराइज दे ट्रेवल लार्जेस्ट डिस्टेंस। सो जब लार्जेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो मोस्ट ऑफ द लाइट्स क्या एकदम छन जाएगी, जैसे पूरी जो ब्लू वायलेट ये जो स्कैटरिंग लो वेवलेंथ वाली लाइन होगी, लो वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी वो स्कैटर हो जाएगी, इधर उधर स्कैटर हो जाएगी, और जबकि जो रेड कलर की लाइट होगी वे इसी में रह जाएगी। इसीलिए कहते हैं स्काई जो अपीयर सनसेट और सनराइज को रेड दिखाई देता है। मूविंग हेड, व्हाई वी यूज रेड कलर एज अ डेंजर सिग्नल? because it has higher wavelength, so it can be seen from a longer distance, so we can use red color as a danger signal. ओके, वीडियो अगर आपको समझ में आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड वन